Hello, welcome to another episode. So I know that a lot of you who are listening to this, you guys want to write movies. It's your dream, and to be honest, it's a dream for millions of people to write a movie. But fact is that writing a movie is very, very hard. Not only to cultivate the skills to write a movie, but also getting a movie made is incredibly difficult. Why? Well, for starters, it's the most expensive form of expressing yourself. Not just monetarily, but also time wise. It takes time to write a movie. Secondly, a lot of movies are made in Mumbai, and most of us are not in Mumbai. Juggling your career, coming to Mumbai, taking that risk, meeting people in the industry, breaking in, writing something, getting it produced. It's very, very hard. So, on this episode of the podcast, I sat down with 4 people who did this very, very hard thing. These 4 actually pursued their dreams, they broke into the industry, and they got their projects made and now have flourishing careers. There's Satyanshu and Devanshu Singh. You guys already know them. Satyanshu, in my opinion, is the best screenwriting professor in this country. I've not seen a more dedicated student of the craft than Satyanshu. Devanshu, his younger brother, is one of the most hardworking people I know. Both Satyanshu and Devanshu hail from a town called Munger in Bihar. Satyanshu left AFMC in order to be a filmmaker in Mumbai. Devanshu studied BMM with me in National College. Then he broke into the industry as a casting director, then an assistant director, then eventually a director himself. Along with these two, we have Aarti Raval and Manoj Kalwani. Aarti is a phenomenal writer, and she was one of the top students in the first batch of AIB First Draft. Aarti wrote a short film called The Interview, which is a part of the anthology series Feels Like Ishq on Netflix. You guys should definitely check it out. It's one of the best things on that platform. Along with Aarti, we have Manoj Kalwani. Manoj is a student of AIB First Draft, the first batch, and he hails from a small town in Chhattisgarh called Korba. During his time at AIB First Draft, he wrote the first draft of a film called Chauda Fere. And today, Chauda Fere just released on ZEE5 as a full-fledged movie, making it the first draft that was written at First Draft to be turned into a movie. So it's a very special moment for all of us at AIB and Satyanshu. The movie is out on ZEE5, and you guys should definitely go check it out. Check it out because a little boy in Korba once had a dream of making it in Bombay and having a movie made, and it's come true. If you're interested in writing movies, you must listen to this full podcast. We talk about how to break into the industry. We talk about how to get your script onto a producer's desk. We talk about what to do once you're in the industry. How do you survive? What's practical skills do you need to make it in this industry? And once you do, what kind of money should you expect writing for the movies? And if you want to learn more, you guys should check out the AIB First Draft book. That's right. There's a book called Idea Se Parde Tak. It's written by Ramkumar Singh and Satyanshu Singh. Everything that the students learned at First Draft, you can learn through this book. It is available on Amazon right now. Link is in the pinned comment. We kept the price really, really as cheap as we possibly could, so we could reach out to as many people who want to learn how to tell a story. Well, all of this and many more super practical, useful tips on how to make it into the industry on today's episode. And none of this would have been possible without our sponsors for today's episode, Skillshare. But more on that later on in the episode. For now, enjoy. Hello and welcome to another episode of Honestly. Today is a very special episode. We have lots of old friends. We're going to be deep diving into their lives, careers. Our episode today is about, friends, it's about how to break into Bollywood as a writer or as a director or generally as talent. हमारे साथ है सत्यांशु सिंह. Hello Sati sir, कैसे हो? मैं बढ़िया खुश हूँ. Fresh recovering off COVID. We have Devanshu Singh, second time director. Devanshu, congratulations, Friday release with his writer dearest Manoj Kalwani. Manoj, welcome. Thank you. And of course Aarti is joining us as well. Aarti and Manoj, पहला Friday release कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफी सही लग रहा है. अभी यही है कि कोशिश करेंगे कि और फ्राइडेज आए ऐसे वाले कई सारे लाइफ में. The high of Friday is over by Saturday. I like it. No, मेरा अभी भी it's still there. Like somebody told me, कि the minute you feel the high is dipping, take a shot. It's just that I've waited so long for this that I'm not letting anybody be a party pooper. I'm very excited. Can you guys, on your own, introduce the projects that you guys worked on and what is it about? Can you tell the audience, Aarti, beginning with you? Yeah, I wrote one film called The Interview, which is a part of the Netflix anthology Feels Like Ishq that released yesterday on Netflix. And the most exciting thing was I had the opportunity to build it scratch up.
logline से लेके till dialogues. So I had the freedom to write my worldview and my kind of a story. Manoj, tell us about your film. हाँ, मेरी फिल्म 14 फेरे जो देवांशु सर ने डायरेक्ट करी है, जिसको शुरू से ही सैटी सर ने मेंटरशिप किया था कोर्स के दौरान, फर्स्ट ड्राफ्ट के दौरान, जिसका मैं पार्ट था. So, in some sense, Sati, Deva, I include you guys as well, right? All of you have had releases during this pandemic, right? So I want to know, your first releases. I want to know that what's your journey been like? When did you guys come to Bombay, so to say, and tell us about your journey. When did you guys start writing these scripts? Chintu Ka Birthday, Chauda Fere, and Feels Like Ish as well. Tell us when did you start writing these scripts? Yeah, I came to Bombay in 2005 and Sati sir was in AFMC Pune back then. और मैंने आते ही एक कॉलेज ज्वाइन किया जहाँ मैं आपसे मिला, तन्मय भट्ट से. जी, और हम लोग जी. एक ही क्लास में थे, एक ही ग्रुप में थे, कॉलेज असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स करते थे. उस समय हम BMM की पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें एक ही सब्जेक्ट था, अंडरस्टैंडिंग सिनेमा. बाकी सारे एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म के कोर्सेज हुआ करते थे. आफ्टर दीज 3 years ऑफ trying to trying to dabble into a lot of things because we come from a place where we didn't have any contact. Sati sir actually came up with this idea कि यार स्क्रिप्ट ही चाहिए फिल्म बनाने के लिए, हमेशा से स्क्रिप्ट ही चाहिए होती है. लेट अस कम अप विद अ स्क्रीन प्ले और उसको ले करके हम इंडस्ट्री में जाएंगे. अदरवाइज कोई बैठा नहीं हमको काम देने के लिए. काम लेके जाओ तो काम मिलेगा. एंड लेट मी पास ऑन द पार्सल टू सैटी सर, प्लीज टेक इट. हाँ, मतलब बहुत लोग मेरी कहानी सुन के कहते हैं कि आप में बहुत करेज था कि आपने वेल सेटल्ड जॉब इन द आर्मी एज अ डॉक्टर छोड़कर आप बॉम्बे आ गए. मुझे लगता है कि वो करेज से ज़्यादा एक सेंस ऑफ क्लैरिटी थी, बिकॉज बाय देन हम चिंटू का बर्थडे का फर्स्ट ड्राफ्ट लिख चुके थे और फर्स्ट ड्राफ्ट स्टेज पर ही इट वाज बीइंग रिसीव्ड वेरी वेल बाय एनीवन इन बॉम्बे. देवांशु के थ्रू हम लोग बॉम्बे में कई लोगों को वो पढ़ाते थे, सम ऑफ देम वेर फिल्म इंडस्ट्री फोक्स, और हर कोई तारीफ करता था, तो उसके कारण कॉन्फिडेंस मिला. और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत लोगों में ये उतावलापन होता है कि मैं जॉब छोड़ दूं क्या, मैं घर वालों से झगड़ा कर लूं क्या, मैं सबको छोड़ छाड़ कर बॉम्बे आ जाऊं क्या, माया नगरी, सपनों की नगरी. मुझे लगता है कि उसके पहले का जो काम है वो बहुत कम लोग करते हैं, कि पहले बैठकर आप अपने आप को प्रिपेयर करो. और वो प्रिपरेशन के बहुत तरीके हो सकते हैं, बट फॉर अस इट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ चिंटू का बर्थडे, एंड विद दैट स्क्रिप्ट इन हैंड I came to Bombay after finishing my MBBS and joined Devanshu in 2008. यहाँ पे एक सवाल पूछने का मन कर रहा है, which I know a lot of people must think कि अगर एक फिल्म, if you want to have a film in your name, ये बॉम्बे आना जरूरी है क्या? मुझे लगता है कि जो पेंडेमिक के पहले का टाइम था तब बॉम्बे आना काफ़ी ज़रूरी था, लेकिन पेंडेमिक के बाद में चीज़ें बहुत बदल गई हैं. अब रिमोटली ही काम होता है मोस्टली. आप स्टूडियोज को आइडिया भी रिमोटली पिच कर सकते हैं, लॉग लाइन लेवल से लेकर के 1 पिच सिनॉप्सिस, 2 पिच सिनॉप्सिस, 5 पिच सिनॉप्सिस समटाइम्स, फिर वो स्क्रीन प्लेस मांगते हैं. तो बेसिकली अब वो खुद प्रेफर करते हैं कि आप उनको ऑनलाइन भेज दें बजाय स्टूडियो के ऑफिस आएँ. तो और जो राइटर रूम्स भी बनते हैं जितने भी शोज़ के लिए, उनमें भी सब लोग अपने घर से बैठ के जूम कॉल के थ्रू या ऐसे रिमोटली ही साथ में बैठ करके काम कर रहे हैं. तो जो पहले लगता था कि शायद पॉसिबल नहीं होगा रिमोटली एक साथ बैठ के काम करना, पेंडेमिक के कारण करना पड़ा, और अब लोगों को लग रहा है कि एक्चुअली ये हो सकता है. देखो, बॉम्बे आना और इंडस्ट्री में आना थोड़ी दो अलग बातें, राइट? लाइक प्रीवियसली बिफोर द पेंडेमिक, आई थिंक बॉम्बे आना इसलिए आई थॉट जरूरी था क्योंकि बहुत सारे जो लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट्स या नेटवर्किंग जिसे कहते हैं हम, वो एक्चुअली इन पर्सन ही होता है. आप किसी को मिलने गए तो उनके साथ कोई था तो आपकी इंट्रोडक्शन हो गया, आपने एक मीटिंग लिया, शायद कोई और साथ में था. सो प्री पैंडेमिक आई वांट टू आस्क आरती, राइट? आरती, you were already in Bombay. How do you break into the industry if you don't know anyone? Like, how did you manage to do that? Yeah, everyone has their own path. Mera was that after I finished my studies, I started working for a production house and across capacities. How did you start doing that? I got a job at a production house when I Like, was did you just apply? 22. Yeah, I applied and I got it at 22, 23 or something. No experience, nothing. So basically, you start right at the bottom where you're doing the things that nobody else wants to do. So from applying for film festivals, those lamba application forms and coordinating with FedEx and itne sare documents, to assisting in direction, marketing,
writing kuch bhi to PR stories. That helped me understand the complete workings of a film. We were a team of just 5 people who did everything. उसमें you get the whole log line से लेकर release तक का experience. In between, I went to FTI and I did film appreciation because somewhere in the middle of it, I felt like I need to understand cinema academically also. While I was getting practical knowledge, I did not have the academic insight into it, which really helped. When I came back from there, it changed the way I saw how films were getting made. And after some time, सब कुछ करने के बाद, I realized, okay, I've done production, I've done marketing, I've done assisting direction, this, that, and I realized that I want to focus my energies on writing and on direction. So that it helps me even now, because as a writer, you have perspectives of how everyone else works. आप बम्बई आते हो and you know a lot of people want the same job that you have, right? Either it's as a writer or even if it's a production intern. Like the whole country wants to be a part of this industry. How do you be memorable in such a situation? Like what are the traits you need that you meet someone और वो networking convert हो कि कोई आपको याद रखे and they call you back, they want to work with you. Yeah, so I have a very clear mantra for everyone, which is stop trying to be someone else and try to figure out what you bring to the table. Matlab, if Devanshu and I, we trace our last 15 years, Devanshu got noticed and his first job was to teach Hindi to a Chinese actor on the film Chandni Chowk to China. And he got this job because of a friend, of course, because the friend got a job and it was like through contacts. But why did the friend choose Devanshu? Because of certain qualities that Devanshu had. One was his sincerity, but also coming from North India, he understood Hindi. He had a command over Hindi. Okay. Similarly, Vikramaditya Motwane noticed Devanshu's command over Hindi and offered us to write the poems in Udan. Tanmay, you noticed my ability to teach well and you gave me the opportunity to start first draft. So eventually देखो हो क्या रहा है, अगर हम लोग कुछ और बनने की कोशिश करते हैं कि भीड़ में हम भी बाकियों की तरह करेंगे, हम भी फर्स्ट एडी बनेंगे, फर्स्ट एडी के बाद हम डायरेक्टर बनेंगे क्योंकि सब वही रास्ता फॉलो कर रहे हैं, तो शायद हम भीड़ में खो जाते हैं. मगर हमने अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया. इट कम्स विद सेल्फ अवेयरनेस एंड इट कम्स विद प्रैक्टिस, बट यू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड यू विल बी नोटिस्ड बिकॉज यू आर यूनिक एंड योर स्ट्रेंथ्स are unique because you are unique. You know, one thing I've noticed in your stories, right? Like Manoj, Aarti, Deva, Sati, ये जो लोग कहते हैं networking, which is contacts बनाना, right? Often ये contacts बनते कैसे हैं? It's usually one individual with one set of interests goes to your best chance is to go to a group of individuals where they're all speaking about their interest. तो शायद वो film school है या कोई book club है या कोई स्क्रीन राइटर्स कॉन्फ्रेंस है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक वन टू मेनी वेयर यू बिकम पार्ट ऑफ द, या फिर फिल्म फेस्टिवल है जहां पे आप लोगों को मिल सकते हो, right? I think what a lot of people do is they think just writing to people is enough, right? I think the writing part is usually part 2. Part 1 is just going to a place where the community of the industry often gathers. तो ऐसे और कौन से film festival है, your writing sessions, Sati, there's that. What else can people do? What are some of the hacks that you found? No, one of the first things that I found was, I don't know how many of you know of it, but when Passion for Cinema was alive, that blog. was a time. Yeah, that was a time for the first time I found a Desi Bombay online community. It wasn't really Bombay, but there were people from outside, but the Bombay people could meet in significant numbers. वो suddenly accessible हो गया था. Like meetings would happen sometimes at Anurag's place and Hansal Mehta is sitting there and this one, that one. And it became like what Mami is to a lot of people now. That time the avenues were not so much. So one of my first things was when PFC happened, and uski wajah se abhi bhi like so many people that I know even today is because we all wrote for Passion for Cinema. Sat, this is an interesting point because often I see that people who are passionate about cinema, if you are not in a place where cinema is made, what you can do is you can also create content about cinema. You can go one to many. राइट कि आजकल यूट्यूब पे बहुत लोग चैनल चलाते, critiquing cinema, they'll make beautiful video essays, someone will write a blog, and that gives you an asymmetric opportunity कि ऐसे कोई पढ़ ले जिससे मौका मिले आपको to further break into it.
You know, Tanmay, in red t-shirt, you are absolutely right. You can always create some form of media in order to break into the industry. And it's not just for writing. It could apply to photography or cooking or anything that makes you feel skillful. And that's where today's sponsor for the episode comes in, Skillshare. Skillshare is an online learning community with thousands of inspiring classes by other creators. There's classes by folks like MKBHD, Roxanne Gay, about everything under the sun, from making classy YouTube videos to baking gluten-free cakes. Look, it's very fun to browse YouTube and find entertaining videos like mine. But you know what's cooler? Checking out video courses with which you can learn a new skill, like playing a guitar or mastering Adobe Illustrator. Learn some advanced stock trading, maybe send me some tips, or learn how to journal for some inner peace. So some things can be done for yourself. For all of these needs and more, Skillshare has got you covered. And it's totally ad-free, so you can learn uninterrupted. For example, I've been looking at the iPhone filmmaking class by Caleb and Niles, which means for less than 2,400 rupees a year, which is less than 200 rupees a month, यानी कि दिन के 2 चाय के दाम पे, I'm learning to elevate my skills to a whole new level. And so can you by accessing these super high quality classes on Skillshare. However, since I know my audience and honestly is already attuned to learning, I've got something special for you. The first 10,000 people to click on the link in the pinned comment will get an absolutely free trial of Skillshare for 1 full month. Just sign up, explore your curiosity, explore all the classes, अपने passion को follow करो. And like me, if you love learning and growing, get their subscription and access the entire library. So check out Skillshare. Maybe it's photography, maybe it's cooking, or maybe it's writing for movies. There's something there for you. And now back to the video. Step 1 is to, get into the community, right? Step 2 is to survive there and find an opportunity to make something, right? So what do you do to survive? सबसे पहले तो like Sati sir said कि you have to know what you're good at, जिसके लिए you will be valued. We are talking to people who are trying to break in. So there's so much competition. There's so many people floating around with practically no work, with the intent of coming into film industry. All that is great, but then you have to identify yourself कि तुम क्या कर सकते हो and your interest कहाँ पर है. जैसे you can maybe write one article for a passion for cinema, but then you will be like अब क्या करूँ? आप impatient हो जाते हो, आप कुछ और करना चाहते हो. And these forums have such qualified people, such amazing people. Like if you're standing in front of a Hansal Mehta, like Aarti said, in Anurag sir's old office, आप क्या ही बोलोगे, क्या ही कर लोगे? I'm a lazy guy. I like directing more than acting. I'm on my toes kind of guy. So I chose कि मुझे क्या ऐसा काम मिले जहाँ मैं एक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ, जहाँ मुझे डायरेक्टर से सीखने को मिले. Being an AD was not an option. मतलब that was my dream, but I was not getting any opening anywhere. So I joined a casting company. I was an assistant casting director where I would be the director for the strugglers. I would take the brief from Ram Advani, from a Milind Dhaimade, all these amazing directors, and I would execute that and meet 200 actors every day, use my intuition to say, you work, you don't work, my dear friend, I'm sorry, and da. And I would take their auditions and I would compile the audition and sit with an editor and present the auditions to the director, and director would say, or the director would say, ये सही किया तूने, या ये नहीं करना है. And this was my first film school because I went to Vinil Matthew, the guy who directed Haseen Dilruba and Hasi To Phasi. He's a maverick and he has such a great intuition for casting कि वो casting assistant को बिठा के हर एक actor पे numbers देते हैं हर एक audition पे 4.4, 4.7, 4.3. वो सारी चीज़ें आपने meticulously सीखी वहाँ पर. And during that time, so in my first or second year of my so-called film school, I was directing actors, shortlisting actors, meeting directly with the director, captain of the ship, understanding his vision, and I knew that this is my place. I'm loving it. I can skip my meals, I can skip my sleep to do this. And I found what one may say one's calling. When I was working as a dialogue coach for the Chinese actor, and the Chinese actor wanted me on set because there was a gap. Now this is luck. अगर शूट तभी हो रही होती तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 23 डेज का था, लेकिन शूट के बाद एक्चुअल शूट में और प्रेप में गैप था 6 महीने का. सो आई वाज कॉल्ड ऑन सेट एंड दैट वाज अब्रॉड. नाउ व्हेन आई एम अब्रॉड एंड आई नो नथिंग अबाउट नथिंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग अंडर द सन, नॉट टू इम्प्रेस पीपल बट ट्राई टू बी हियर बिकॉज इट वाज लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू बी द क्रिकेटर. और अभी मुझे स्टेडियम में खड़े होने का मौका मिल रहा है. कौन सी फिल्म थी ये देवा, बता दो सबको. Chandni Chalk to China, and it was shot in Thailand, and I got my first passport made because somebody needed a guy who could train somebody for cheap. I remember this. And then I went there and I didn't know how to give a clap, I didn't know how to write continuity sheet, I was shouted at, I was bullied at, and I took everything कि हाँ भाई ले लो. This is something Tanmay which I feel, being here for 15 years now,
कि आप आज किसी 18 19 21 साल के बच्चे को बोलो कि तू आ जा और काम करके सीख, तो दे विल से कि नो आई डिडंट साइन अप फॉर दिस। हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। अगर हम आज ना बोलते हैं, एक पूरी यूनिट हमको देख रही है और बोल रही ही इज नो गुड, एंड नॉट दैट आई डिडंट मेक माय फेयर शेयर ऑफ मिस्टेक्स, आई मेड 100,000 मिस्टेक्स, but maybe someone, Nikhil Advani, I remember this, the final day when we wrapped our shoot and we were returning Mumbai airport पे, मैं economy class, sir business class, on my way back to the airport where I was going to the auto stand, he stopped me and said, अगला क्या कर रहा है? I said, I don't know. He said, come join me, you are a good kid, I'll train you, सीख ले काम। तो आपको वो मजदूर बनना पड़ेगा और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपकी रियलिटीज कि यू कांट गो बैक एंड दिस इज ऑल यू हैव, एंड इफ यू हैव अ ब्रेक थ्रू अ फ्रेंड ऑफ योर्स and if your other peers are supporting you, might as well go and make the most of it. Sati, you had Deva as your, your proxy in the industry, right? So for a lot of people, they don't have that. Yeah, I really believe that I was lucky, and this was another reason why it was easy for me to quit my conventional career, because I had a script on my hand and I had my brother, and both of us were willing to क्या, वो तो by default था that we would stay together and we'll, किसी महीना देवांशु कमा लेगा, मैं नहीं कमाऊंगा, किसी महीने मैं कमाऊंगा, देवांशु नहीं कमाएगा. I understand that. I frankly don't know. I mean, I think it's a little unfair to everyone else, to be honest. And I felt that all the time. चिंटू का बर्थडे डायरेक्ट करते वक्त I always felt it is so unfair to directors who work singly, because here Devanshu and I, both of us are playing on our respective strengths. However, one thing which I can tell you guys with complete conviction is that I never took this for granted. What I did was, so Devanshu is a hustler, he's a doer, he's, despite how he looks like, he's fitter than me, and he's and he, like, when it comes to sweating it out, he'll happily do it without sleeping or eating. I want to sleep well, I want to eat well, and if he's a doer, I am perhaps a student. And that's why throughout my stay in Bombay, now 13 years, what I have done is I have found ways to enable my studies. That's all I have done. सबसे मेरा जो पहला जॉब था वो था कि एक महुआ चैनल करके एक भोजपुरी टीवी चैनल है, पता नहीं अभी है कि नहीं, महुआ नाम है उस चैनल का. तो उस महुआ चैनल पर एक भोजपुरी शो था, उसका नाम खानदान था मोस्ट प्रोबब्ली. उस शो के जो राइटर थे, फर्स्ट ड्राफ्ट पे खुद से टाइप नहीं करते थे, लेकिन उनको स्क्रीन प्ले उनको भी इंग्लिश में भेजना पड़ता था. ये देखो, रियलिटी भोजपुरी शो है, लेकिन स्क्रीन प्ले इंग्लिश में जाएगा, फिर डायलॉग राइटर उस पे भोजपुरी में डायलॉग लिखेगा. तो वो क्या करते थे उस वक्त, तो ना मतलब स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का भी कल्चर उतना नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट 2008. तो वो ना छोटे छोटे कैसेट्स आते थे, इतने छोटे छोटे, उस पे वो पूरा स्क्रीन प्ले रिकॉर्ड करते थे. उसके बाद बादल सिंह घोड़े से जा रहा है, भाई आ रहा है विक्रम सिंह बादल सिंह को बोलता है कि भैया बहुत हो गया. अब दोनों में झगड़ा होता है, और झगड़े के बाद देखते हैं, कट टू करते हैं कि बादल सिंह की जो पत्नी है वो किचन में रोटी बना रही है. इस तरह करके पूरा रिकॉर्ड करते थे. और मेरा काम होता था, जब वो फोन करते थे तो उनके घर पे जाके कैसेट लेके आ जाना, और मैं कैसेट लेके आता था, और उसके बाद उसको मैं फाइनल ड्राफ्ट पे पूरा टाइप करके, फॉर्मेट करके मैं वो भेजता था, और उसको वो डायलॉग राइटर को फॉरवर्ड करते थे. उसके लिए मुझे पर एपिसोड 2,000 रुपये मिलते थे, विच वॉज ग्रेट, बिकॉज इफ आई डू से 10 एपिसोड्स इन अ मंथ, it would take me some say 30-40 hours, but it will give me $20,000, which is enough for me to sustain myself. Okay, so 30-40 hours उधर गए, और बाकी पूरा टाइम स्टडीज, मूवी देखो, राइटिंग करो, और घर पे बैठो, आफ्टरनून नैप लो, और मूवीज देखो, और यही करते रहो पूरे समय. So I think I have done that really. I've worked very hard as far as that is concerned, but हाँ, मैंने पसीना नहीं बहाया, और ना ही मैंने पैसे को लेके ज्यादा कभी टेंशन. देवा क्या क्या करना पड़ा था, और अजीब अजीब प्रोजेक्ट्स तो किए होंगे सर्वाइव करने के लिए. देवा के पास तो बहुत स्टोरीज होगी इस पे. हाँ, there was once when I became a junior artist at a show. कोई रियलिटी शो पे बैठ के ताली बजाता था. उसके लिए कहा गया था पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर मिले भी नहीं. तो एंड में जाके मैंने पूछा कि भाई पैसे, तो उसने कहा उससे मांगो, उससे मांगो, उससे मांगो. आई रिमेम्बर फॉलोइंग द ईपी उसके गाड़ी तक, और शर्म भी आ रही है क्योंकि उस घर का नहीं हूँ कि भाई पैसे दो मेरे, वरना फोड़ दूंगा. बट पैसे चाहिए क्योंकि पैसे नहीं है, घर जाना है. तो नीचे जाके उससे पैसे मांगे और बोले भाई पैसे चाहिए मुझे, दे दो. और मतलब रोतलू शक्ल बना के कही कि सर मेरे लिए 300 रुपये हैं, आपके लिए बहुत कुछ भी नहीं है,
दे दो प्लीज। ये सर ये साइन करना पड़ेगा, वो साइन करना पड़ेगा। फिर मैंने और पैसे खर्च किए कि वहां जाके मैं साइन करके ले सकूं। एंड देन राइटिंग फॉर DD1 पे एक भोजपुरी सीरियल आता था, हिंदी सीरियल आता था, उसके जो राइटर थे वो बिहारी थे। तो वो सेट पे ऐसे ही मुझे डिक्टेट कराते थे और मैं लिखता था, क्योंकि मैं हिंदी साफ लिख सकता हूँ, हैंड राइटिंग ठीक है। ये सारी चीजें जो बचपन में थी हाथ में, मतलब दीज आर लाइक एरोज इन योर क्विवर, वो काम आ रहा है कि आप हिंदी लिख सकते हो, बड़े बड़े अक्षर में लिख सकते हो। अक्षय कुमार के लिए आप डायलॉग लिख करके कैमरे के पीछे पकड़ सकते हो। You know, sadly, some things I've noticed, right, of people who are from the outside who break in. Like I think Naveed is also a good example, right? Like some qualities, Naveed, there are some qualities that are common, right? Super high integrity, just completely open to learning, right? And come with super specific skill sets that are useful in any environment. They're all doers, right? Like abhi kuch bola karna hai, and you can trust them with, oh, this will end up happening. I've seen this with Deva as well. There's a reason why Nikhil Advani stopped you and said, come, right? There's a reason why, like, because these stories are literally, this is what everybody dreams of. Munger say, now you have, this is the second film that's releasing. These are some of the qualities that you need, and you have to adjust yourself with that personality, right? Also, Tanmay, also resilience. I mean, Manoj is a great example. What Manoj has endured over the last 5 years, उसके लिए जो resilience चाहिए ना, जो उसके लिए thick skin चाहिए, उसके लिए जो will चाहिए, हो सकता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि घर वाले नाराज है पीछे। हाँ। तो वो हो जाता है कि अभी क्या मुंह लेके वापस जाएंगे, वो भी रहता है। जैसे हम लोग, मैं तो 7 साल अपने घर ही नहीं गया था बॉम्बे। जब मैं आया 7 साल अपने घर नहीं गया यार। देयर इज सो मच एट स्टेक ना यार, देयर इज सो मच एट स्टेक कि वो रेजिलियंस भी आ जाता है। मतलब मनोज, फिल्म लिखी, उसके बाद बनी नहीं फिल्म इमीडिएटली, जब फर्स्ट ड्राफ्ट पे लिखी थी, उसके बाद कितना टाइम गया वो फिल्म बनी नहीं, क्या क्या हुआ उस टाइम में? आई मीन बहुत चीजें होती हैं, बहुत सारी वियर्ड चीजें होती हैं कि मतलब ये होता है कि कई बार ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि यहाँ बन जाएंगी चीजें क्योंकि सबको पसंद आ रही है, फिर इवेंचुअली पता चलता है कि अब नहीं बन सकती और उसके पीछे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता। आई थिंक कुछ तो रीजंस होते ही होंगे ऑब्वियसली, पर ऐसा बहुत बार होता है इंडस्ट्री में कि आपने किसी प्रोड्यूसर को फिल्म पिच करी, उनको पसंद आ गई बहुत ज्यादा और फिल्म बन नहीं पाती है फॉर वेरियस रीजंस। कई बार तो फिल्म वो खरीद भी ली जाती है, आपको पैसे भी दे दिए जाते हैं, पैसे देने के बावजूद वो फिल्म बाद में डब्बे में चली जाती है। आई थिंक उसका रेशियो बहुत हाई है वैसे भी, मतलब वैसे ही कि खरीद भी ली गई है तो आपको लगता है तो खरीद ली गई, तो प्रोड्यूसर ने इन्वेस्ट कर दिया है मेरे को, तो पिक्चर बननी ही बननी है, लेकिन उसके बाद भी नहीं बन पाती फॉर वेरियस रीजंस। कास्टिंग नहीं हो पाती कई बार, डायरेक्टर नहीं मिल पाते कई बार, मतलब ये स्ट्रगल है और आपको उसके साथ जीना पड़ेगा बेसिकली। फिर आपको लगेगा नहीं दूसरी लिखो, तीसरी लिखो और फिर उनको सेल करो। कितने फिल्में लिखे मनोज? जब पहली फिल्म अभी रिलीज हुई, पिछले 5 साल पहले लिखी गई थी ये फिल्म, जब फर्स्ट 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये फिल्म को 14 5 फरवरी साल को हो लिखे। गए। हाँ 5 साल हाँ, हो गए। जब से लिखी गई थी, तो इतने टाइम में क्या क्या लिखा है? और बाय द टाइम योर फर्स्ट प्रोजेक्ट केम आउट, फर्स्ट फिल्म की जब रीराइटिंग हो ही रही थी, जब उसके कुछ ड्राफ्ट लिख लिए गए थे, उसी दौरान मैंने एक दूसरी कहानी पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, उसके भी बहुत सारे रीराइटिंग हो गए। फिर मैंने तीसरी कहानी पे काम स्टार्ट कर दिया था, उसके भी काफ़ी सारे रीराइटिंग्स हो गए और अभी चौथी पे काम कर रहा हूँ, उसके सेकंड ड्राफ्ट पे हूँ बेसिकली। और मेरे को लगता है एक ये अच्छी मेथड होती है कि किसी कहानी पे काम करो 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, और उसके बाद उससे ब्रेक ले लो और दूसरी कहानी पे काम करो, और उसके बाद जब आप 3-4 महीने के बाद वापस उस पुरानी कहानी पे आओगे तो आपके पास बहुत ऑब्जेक्टिविटी रहती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, फिर आप एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच पाते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी कई बार आपको नहीं मिल पाती है, खास करके जब आप कमीशन वर्क लेते हैं तो वो उसकी एक डेडलाइन होती है, वो तभी बनना होता है। पर जो आपका खुद का काम रहता है, क्योंकि हम एज अ राइटर हमारी लिमिटेशन है बहुत सारी, सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं, तो जो आपकी वीकनेस है वो आप ज्यादा अच्छे से उन पे काम कर पाते हो आई बिलीव जब आप कुछ टाइम के बाद उसको रिविजिट करते हो। जो मेरी दूसरी स्टोरी थी जिसपे बहुत टाइम से मैं फंसा हुआ था, वो फिर वो मैंने बंद कर दी थी और फिर एक एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, जिससे मेरे को लगा कि ओ अगर ये मैं इसके थ्रू इसमें काम करना स्टार्ट करूं तो बेटर तरीके से जाएगी। और फिर उसको 4 महीने बाद उसको मैंने रीराइट किया तो वो इम्प्रूव हुई, क्योंकि टाइम बहुत होता है। कमीशन वर्क भी मेरे ख्याल से एक दिन में 3-4 घंटे ही आपका रहता है जो आप साथ में मिलके जैम करके काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज घर में जो आपके पास टाइम है उसमें आप अपना खुद का काम कर सकते हैं। और खुद का काम में सबसे अमेजिंग बात ये होती है कि उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, कुछ नहीं होता है, कुछ भी लिख दो, आपको जो मन में आ रहा है वो लिखो, दोस्तों को भेजो फीडबैक के लिए, इम्प्रूव करो, फिर भेजो, फिर इम्प्रूव करो। मेरे को लगता है अगर आपका क्राफ्ट बहुत अमेजिंग नहीं भी है
तो भी रीराइटिंग से वो क्राफ्ट इंप्रूव होता है। मतलब आपको दोस्त ने बता दी कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसे सपोज आपने बहुत सारे वॉइस ओवर्स लिख दिए हैं, और वॉइस ओवर अच्छा लिखना एक बहुत बड़ी आर्ट है, और बहुत सारे वॉइस आपने लिखा है जो वर्क नहीं कर रहा है, तो वो दोस्त आपको बता देगा कि ये वर्क नहीं कर रहा है भाई, तो आप रीराइटिंग में उसको हटा के उसको डायलॉग्स के थ्रू लाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर वीओ का आपका क्राफ्ट अच्छा नहीं भी है तो भी इवेंचुअली वो इंप्रूव हो जाएगा रीराइट कर करके, क्योंकि आपने वो हटा दिया है। अब ऐसे ही और भी जैसे फ्लैशबैक है, वो भी थोड़ा ट्रिकी होता है, या और भी जो एक्सपोजिशन करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें अगर आपको क्राफ्ट में प्रॉब्लम है तो भी रीराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव उससे सब इंप्रूव होता जाता है धीरे धीरे। आरती, between the project that's released now, like कितने projects पे काम किया और क्या क्या किया, रेंज बताओ हमें. So the one that's released is a short film. But I have worked with a theater director for a monologue-ish play. I have worked on shows and feature film, one which I was pretty much told what the story is, and the second one where we were told, let's figure it out as we go. So all I think this has been the range. कुछ चीजें हैं which I'm trying to work, like even book adaptations. One book adaptation thing is also happening. So all of them, from short film, book adaptation, play, and feature and show. So you've done it all, and you have to be open to be able to do anything that's thrown your way. Yeah, and I think I consciously also seek these things out. The trying to fill the gaps in my writing, which I feel like, because trying to identify what is your weakness. Like, is ideation your weakness? Then you try to work on it. If there is a time when nothing is hitting you, but you're like, okay, fine, maybe I should just read a great book and something will come out of that. That is also a way to. So I have consciously sought these things out also in a way. I really feel that a good content finds its way. I really believe in this. However, generally, once a door opens for you, it opens only once. Okay. So instead of trying, मतलब क्या उसका? मतलब कि अभी मुझे राजकुमार हिरानी मिल जाए, एक बार बस सुन ले, बस एक बार मिल जाए और एक बार बस 2 मिनट दे दें मुझे, ये हजारों लोगों के मन में अभी है। अगर ये सपना सच हो गया ना, और ये होता है सच, अगर ये सपना सच हो गया तो राजकुमार हिरानी मिलेंगे आपको और 2 मिनट दे देंगे, और उस 2 मिनट में आपने जो बोला अगर वो खराब हुआ तो जीवन में हमेशा के लिए राजकुमार हिरानी के नाम का दरवाजा आपके लिए बंद हो गया। बंद हो गया। सो आई थिंक तो मुझे बताओ, गलती से, ठीक है, अगर आपके भाग्य में लिखा हो आप राजकुमार हिरानी से मिलते हो, या कोई भी इंसान जो प्रोडक्शन कंपनी में मिलता है, तो उसका आइडियल सिचुएशन क्या है, राइट? इमेजिन इफ देयर वाज, आफ्टर ऑल दैट यू नो सैट, इमेजिन यू आर 18 अगेन एंड यू बाय एक्सीडेंट मीट समवन हु इज फ्रॉम द इंडस्ट्री, हु वर्क्स एट अ प्रोडक्शन कंपनी, जो आपकी स्क्रिप्ट पहुंचा सकता है करण जौहर के डेस्क तक, तो क्या होना चाहिए उस मोमेंट पे आपके पास? सो सबसे और मैं बिल्कुल फंडामेंटल बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये बात बन गई ना, अगर आपको सही में अगले हफ्ते बुला लिया ना नरेशन के लिए, और स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है ना, आपकी बुरी हालत होनी चाहिए डर से। तो सबसे पहले तो आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, और स्क्रिप्ट जो मनोज और आरती ने बोला है, मनोज और आरती दोनों को लेकर मैं कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूँ कि इनका पहला प्रोजेक्ट कल रिलीज हुआ होगा, मगर पिछले 5 साल में नॉन स्टॉप राइटिंग की है इन्होंने, नॉन स्टॉप। और मनोज ने जो 4 फिल्में बताई ना, उसके अलावा इसने 2 शोज पे भी काम किया है, और एक किसी दूसरी फिल्म पर असिस्टेंट डायलॉग या कुछ वैसा भी किया है। काम बहुत किया है इन लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहले तो काम करते रहना है, फीडबैक रीराइट करते करते आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद उस स्क्रिप्ट का एक 1 पेज सिनॉप्सिस होना चाहिए, और वो सिनॉप्सिस मेरे हिसाब से तो स्क्रिप्ट से भी बेहतर होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी स्क्रिप्ट वेरी गुड है ना, तो सिनॉप्सिस ब्रिलियंट होनी चाहिए। हाँ, और कई बार हम लोग इस फैक्ट को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि यार स्क्रिप्ट तो बहुत अमेजिंग है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सिनॉप्सिस लेवल पे ही चीजें रिजेक्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर आपके पास में, आपने सिनॉप्सिस लेके गए हो, और ये बहुत लाइकली है कि उसकी स्क्रिप्ट बहुत अमेजिंग हो आपकी, लेकिन क्योंकि सिनॉप्सिस अच्छा नहीं था, तो जैसा सर ने बोला कि वो डोर क्लोज हो गया बेसिकली परमानेंटली। बेसिकली आप अगर किसी से 3 घंटा मांग रहे हो, उनकी जिंदगी के 3 घंटे मांग रहे हो आप कि आप मेरी स्क्रिप्ट पढ़ो, राइट, पहले ये जस्टिफाई करो कि पहले 5 मिनट सही हो। मैं आपको बता रहा हूं ना, सिनॉप्सिस मैं 3 घंटा नहीं मांग रहा हूं, मैं 5 मिनट मांग रहा हूं आपसे, तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट 5 मिनट्स इज हायर, सो मेक दोस 5 मिनट्स काउंट, एसेंशियली इज व्हाट यू आर सेइंग। एक एटीट्यूड वाली बात मैं पॉइंट करना चाह रहा हूँ, सॉरी सैटी सर, एक एटीट्यूड वाली बात मैं पॉइंट करना चाह रहा हूँ। हमको नज़दीकी फ़ायदा नहीं देखना चाहिए कि वी आर गेटिंग आवर फुट इन द डोर।
दूर का नुकसान सोचना चाहिए, इज व्हाट सैटी सर सेड। और आजकल यही हो रहा है कि वी आर आउटसाइडर्स ना, हम तो, लेकिन अभी तो वी आर इनसाइड, वी आर वर्किंग ऑन फीचर्स। सो लाइक एवरी डे आई एम गेटिंग ऑन माई डीएम कि भाई हमारे पास स्क्रिप्ट है, हमारे पास एक वन लाइन है, पढ़ लो। वो मैसेज भी जब आप भेजते हो ना, उस मैसेज में 1000 टाइपोज होता है। हाँ हम आपको कैसे सीरियसली लें? एक तहजीब सिखाई है ना माँ बाप ने भाई, कि किसी को अप्रोच करो तो इज्जत से मैं करो। मैं अक्सर वो ईमेल्स पढ़ता हूं जहां पे शुरुआत में ही ह्यूमिलिटी दिखती है कि मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैंने एक फिल्म लिखी है, ये स्क्रिप्ट है, इसके बारे में है, इस जॉनर में है, ये सिनॉप्सिस है, ये पूरी स्क्रिप्ट है, प्लीज अगर टाइम मिले तो पढ़िएगा। और जब मुझे ऐसे मेल आते हैं, पता है मैं क्या करता हूँ, लाइक बिकॉज आई एम नॉट एक्टिवली लुकिंग टू आई डोंट थिंक आई मेक इट इन द नेक्स्ट ईयर, आई विल फॉरवर्ड इट टू सैटी, राइट, आई विल बी लाइक ये देखो किसने लिखा है, ये देख लो। Because I think intent is there to help. People want to help, right? You just have to create the right impression in that right moment, right? कि it hurts me in no way कि मैं एक forward button दबा दूँ, इससे बात कर ले, मैं नवीद को भेज देता हूँ, मैं देवा को भेज देता हूँ कि ये देख लो. So I think people want to help. You just need to give them a reason to help. We should know there are thousands of writers floating around every day and they are good scripts. ऐसा नहीं कि अच्छी scripts है नहीं, वो है कहीं पर। तो आप ये मत सोचो आप एक लौती ना सबसे अच्छी फिल्म लेके आ गए हो। तो है अच्छी स्क्रिप्ट हमारे पास बनाने के लिए है। Yeah, but seeing it also comes from a place whenever you're approaching somebody, instead of approaching it with the headspace that I am owed this meeting and I'm owed attention, it should come from a place of I am one amongst many and this person is also listening to, like 100 messages are going to that guy. So instead of thinking कि हाँ भाई तुम तो reply ही नहीं करते हो, तुम्हारे पास नहीं, यार मतलब just understand, have some empathy even for that person. Just because he or she is slightly at a better position than you does not mean that he or she has all the time or he or she has all the intent or resources to make everybody's stuff happen. So, and that reflects, like you said, in the email. A lot of the emails begin with the thing के listen now, like look at me, I need your attention. म्यूजिक देखो, जैसे अभी मैं सैटी सर को उस दिन बता रहा था, जिस दिन मेरी फिल्म का ट्रेलर आया है उस दिन आई गॉट अ मैसेज तन्मय, आई एम अ म्यूजिक कंपोजर, आई कंपोज म्यूजिक, आई एम अ म्यूजिक कंपोजर, आई कंपोज म्यूजिक। और तीसरा सेंटेंस है कि आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, अगर उसके लिए गाने चाहिए तो बताइए। Nice. Sorry, this whole thing began because Sati, you were talking about if you had that moment when you could meet Rajkumar Hirani, what should that moment be like? तो आपके पास स्क्रिप्ट तो होनी चाहिए, you must have done your homework, और सिनॉप्सिस हो तो और भी बढ़िया। और क्या होना चाहिए? सिनॉप्सिस के बाद आपके पास एक लॉग लाइन होना चाहिए, और वो लॉग लाइन ना सिनॉप्सिस से भी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि बात वहीं से शुरू होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली होता क्या है ना कि मैं सही में बता रहा हूँ, अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे फिल्म मेकर के भी सामने पहुंच गए ना, वो आपको टाइम देगा, इसका चांस कम है। लेकिन अगर आप उसको हेलो बोलोगे कि हेलो सर, आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ योर वर्क, आई एम अ राइटर माई सेल्फ, आई हैव समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग बट आई नो यू आर बिजी, इफ यू गिव मी 30 seconds आई विल टेल यू व्हाट इट इज एंड आई डोंट माइंड इफ यू वॉक अवे। वो बंदा देगा 30 सेकंड, वो दुनिया का बेस्ट फिल्म मेकर भी होगा ना, वो 30 सेकंड देगा। What a compelling pitch. 30 seconds. And you could get a movie in return. That feels like a good bet. यस, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है तन्मय। सिंस आई डील विद एस्पायरिंग राइटर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, बहुत लोग मुझे डेली कांटेक्ट करते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं बहुत बढ़िया है भाई, सब अच्छा है, मैं पढ़ूंगा भी, मैं तुझे टाइम भी दे रहा हूँ, मैं मौका दे रहा हूँ, तू एक बढ़िया 1 पेज सिनॉप्सिस भेज दे। वो बंदा बहुत दिन मेहनत करके एक 4 पेज सिनॉप्सिस भेजता है। मैं बोलता हूँ भाई 1 पेज बोला था, 1 पेज में दे। कहता है सर 1 पेज में हो नहीं पा रहा है। ठीक है, हो नहीं पा रहा का कोई मतलब नहीं है, आपको करना पड़ेगा। लोग मेहनत की चीज है, वो आपको करना पड़ेगा। yesterday something really, day before yesterday something really bizarre happened. Someone contacted me और उसने क्या किया था, उसने बोला था कि just because so many people approach you and you are too busy and that's why you can't help, you should not make this an excuse sir, you should use this to help people that so many people are approached। तो उसने ऐसे कुछ घुमा दिया बात को। तो मैंने बोला ठीक है भाई, और ये इंस्टा पे चैट हो रहा है, मैंने बोला ठीक है भाई, मैं तुझे हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे एंटाइटलमेंट नहीं दिखना चाहिए। डील? उसने कहा डील। फिर बात शुरू हुई, कुछ बोला। मैंने बोला भाई तू करना क्या चाहता है, तू राइटर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, प्रोड्यूसर, तू लाइफ में करना क्या? क्योंकि बहुत कुछ कर रहा था, तो जवाब नहीं दे रहा उसका। मैं बार बार यार उस सवाल का जवाब देना, तुझे करना क्या है लाइफ में? तो उसने आंसर दिया, आई वॉन्ट टू प्रोवाइड इंडिया ग्रेट फिल्म्स।
तो ये मुझे लगता है ये एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार कि मतलब एक आप अचानक खड़े होकर नहीं बोलोगे कि आई वांट टू प्रोवाइड क्योर ऑफ कैंसर, है ना? आप नहीं बोलोगे आई वांट टू प्रोवाइड इंडिया इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन जिम्नास्टिक्स। ऐसे खड़े होकर आप नहीं बोल दोगे अचानक से आई वांट टू प्रोवाइड। फिल्म राइटिंग को लेके ये एटीट्यूड क्या है कि आपके पास जो है वो बहुत स्पेशल है और हम सब बहुत बहुत नीडी हैं कि हम तो इसीलिए वेट करें कोई आके हमारा उद्धार करे। उस प्रोसेस में जो हार्ड वर्क है ना वो मुझे हमेशा मिसिंग दिखता है, और जो वो हार्ड वर्क पुट इन कर देता है उसका रास्ता खुल जाता है। The hard work is in preparation of that moment where you are able to speak to someone who can make your thing happen. Actually, मौका मिलेगा पर उस मौके के लिए आप तैयार नहीं हो. बट मेरे को लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा मैं फॉर्चुनेट रहा इस मामले में, क्योंकि मेरा बहुत क्लियर था कि मैं, चलो ठीक है मैं FTII जाऊंगा, मैं प्रिपेयर करता, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत फिल्म वगैरह देखता था, तो मेरे को पता नहीं था कि फिल्म को करना है पर क्या करना है। मैं जस्ट फिगर आउट कर रहा था कि पार्ट बनना है इंडस्ट्री का, क्योंकि क्योंकि फिल्में देखना पसंद है। तो फर्स्ट ड्राफ्ट का जब मैं असाइनमेंट लिख रहा था तो जिंदगी में पहली बार मैं कुछ लिख रहा था लाइफ में, जो स्कूल का काम नहीं था, उसके अलावा जो लिखने वाली चीज होती है वो पहली बार ही कुछ लिख रहा था। फॉर्चुनेटली मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया। तो इंटरव्यू मेरे को याद भी है, मैंने सैडी सर से पूछा था कि मेरे को नहीं पता स्टोरी स्क्रीन प्ले में डिफरेंस क्या होता है, तो वो भी नहीं पता है अभी तक। तो मनोज के इंटरव्यू में एक कन्विक्शन था। मनोज ने मुझे बोला था कि सर आप मुझे सिखाओ, मैं सब कुछ लगा दूंगा। ये मोमेंट आई बॉट इट, आई सेड तन्मय ये करेगा, इसका सच्चा कमिटमेंट है। तो बेसिकली वहां से फिर ये हो गया कि मैं फॉर्चुनेट था कि मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया, वरना फ्रैंकली मुझे नहीं लगता है कि मेरे अंदर इतना करेज था कि मैं मैं बोलता कि चलो सब कुछ छोड़ो और चल के बॉम्बे स्ट्रगल करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। वो करेज होना है एक बहुत मुश्किल काम, क्योंकि मेरा सेल्फ डाउट भी बहुत था, अभी भी है, अभी थोड़ा कम है, पहले बहुत ज्यादा था। तो आपको लगता है कि यार मैं जाऊंगा, वर्थ है क्या, बॉम्बे इतनी एक्सपेंसिव सिटी है, ये है वो है। तो वो कई लोग के दिमाग में क्लैरिटी रहती है, जो सैडी सर ने बोला कि उनके दिमाग में क्लैरिटी आ गई थी, मेरे को वो क्लैरिटी कभी नहीं थी। आई वॉज लाइक आई नीड समथिंग टू बिगिन विथ। तो मेरा था कि वो बिगिनिंग होगी FTII से, क्योंकि वो एक स्टैब्लिश अच्छा फिल्म स्कूल था, और उससे पहले यहाँ पे हो गया तो भी ज्यादा अच्छा हो गया। Do film schools help, in your opinion, interacting with people who've gone to film school? Do they help you break into the industry? Yeah, they definitely do. With the strong alumni associations that you have, your batchmates, the friends of your batchmates, especially if you're from some place that is as prestigious as FTII, you already know that you are amongst the handpicked dozen from like a country of FTI is the billion people. IIT for Yeah, the movie industry, right? yeah, FTI गया तो वो बैज आता है भाई, FTI ऐसे ये बंदा. yeah. एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इफ़ यू सी द टेक्निकल पार्ट, नॉट द राइटिंग पार्ट, बिकॉज दे से दैट एनीबडी कैन राइट, बट इफ यू वांट टू बिकम अ सिनेमाटोग्राफर एंड इफ यू हैव अ लेजिट ट्रेनिंग एट एन FTII और लेट्स से एन SRFTI और इवन साउंड डिज़ाइन एंड एडिटिंग, इट मोस्ट लाइकली आप उनको ट्रस्ट करोगे ना कि दे आर द चोजन फ्यू एंड दे आर बीइंग ट्रेन्ड बाय सच अमेजिंग प्रोफेसर्स, एंड देन उनके लिए आसान क्या हो जाता है। लाइक माई सिनेमाटोग्राफर, आई हैव सीन दिस वेरी ऑफन, all my cinematographer friends, they prefer juniors from FTII for a valid reason कि they have had the training and they come from the similar mindset. They are here to work and they know they are not here to change the world, they are here to serve the vision of a director, and it's very different. Writer is writing his own voice, director is directing his own voice, cinematographer is following someone else's vision. तो वो चीज़ जो हो रहा है इस पे ऑल माई सिनेमाटोग्राफर फ्रेंड्स के यूनिट में मैं देखता हूँ दे आर न्यू किड्स और गर्ल्स टेकिंग नोट्स, फॉलोइंग फोकस और टेक्निकल चीज़ें सेट पे करते हुए, बिकॉज इससे एज अ टेक्नीशियन उस 8 घंटे में जब आप पे प्रेशर होता है एज अ सिनेमाटोग्राफर या लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट, आपको भी सहायता मिलती है, असिस्टेंस मिलता है उस 8 घंटे में। इट्स लाइक प्लेइंग द गेम, उसमें यू आर नॉट हियर टू डू फेवर्स, यू हैवंट ओपनड अ फिल्म स्कूल, तो वहाँ यू नीड समवन कॉम्पिटेंट, and which is where the technique going to a film school helps in that, mostly in the technical department. पर प्रॉब्लम ये है ना कि इनमें सीट्स बहुत कम होती है। जैसे FTII में 10 सीट है, SRFT में भी ऐसी आई थिंक 10-15 सीट्स ही होंगी। तो प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट ड्राफ्ट में भी 10 ही थे. कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप बहुत टाइम तक उनके लिए वेट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने एक बार अटेम्प्ट कर दिया तो ये नहीं होगा कि अगले महीने आप दोबारा पेपर दे सकते हैं, फिर आपको पूरा 1 साल वेट करना है।
जैसे इंडस्ट्री में अगर आप आ गए यहाँ पे और फिर किसी ने मना किया तो आप दूसरों को अप्रोच कर सकते हो, तीसरे को अप्रोच कर सकते हो, वहां पे फिर ये हो जाता है कि भाई अगर आप 2-3 साल रिजेक्ट हो गए फिर आप घर ही बैठ जाते हो। तो वो भी एक हमको बैलेंस देखना चाहिए कि अगर नहीं हो रहा है फिल्म स्कूल में तो हमको क्या करना है, क्योंकि अच्छे फिल्म स्कूल्स कम है और उनमें सीट्स बहुत कम है। लेट मी टेल यू हैक, जैसे अगर कितने लोगों को सिनेमेटोग्राफी करनी है लेकिन आपका फिल्म स्कूल में नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? You can shoot videos, you can go to a DOP, but he won't take you as an assistant for obvious reasons. So you have to accept that and start shooting. Vikram Motwane taught us, Satyanshu sir and me, कि shoot everything under the sun. Shoot करो. Play with the gadget. Get a command over the gadget. You guys shot a lot. खुद की शॉर्ट फिल्म बनाई, खुद बैठ के एडिट भी किया, फोन पे शूट किया. देवा, मेरे को तो याद है कॉलेज में तूने खुद कास्टिंग सब कुछ फ्रॉम टॉप टू बॉटम किया था. हमको कॉलेज में फिल्म मेकिंग असाइनमेंट दिया था, ठीक है. हम सब ने में किसी घर पे लगा लिया ऐसे के वो कैमकॉर्डर लगा के. देवा ने पूरा प्रोडक्शन टीम सेटअप कर लिया था, एकदम ही फैंसी सब कुछ. देवा वाज लाइक, मैं लो बजट डायरेक्टर बनूंगा पर मैं डायरेक्टर जरूर बनूंगा. यू नो, आई रिमेंबर यू वेंट आउट ऑफ योर वे टू डू ऑल दैट स्टफ. But today the biggest hack for a cinematographer are two things. One is their Instagram page. Make your Instagram page, make it look like $1 million, so that when you show that Instagram का एक link आपने भेजा, and I keep looking for such talents for the smaller projects that I do, or for the behind the scenes अगर मुझे करना है, तो I don't want to go to any random person with a camera. I want to go to the guy who has an eye, who has aesthetic sense, और उसका इंस्टाग्राम पेज बनाइए. आप अपने शोरील बनाइए, रैंडम चीज, सनसेट सनराइज शूट करके. ऑल द बेस्ट. अभी तेरे इंस्टाग्राम पे बस यही आने वाला है भाई. जनता वाले आज शाम को वॉक पे गया था, मैंने 2 मूवी शूट करके आ गया. ये लो दिवांशु, ये देख लीजिए. मेरा तो सब कुछ एकेडमिक ही है, तो मुझे लगता है कि फिल्म स्कूल ऑब्वियसली हेल्प करता है. बट मनोज ने जो बोला है, प्रैक्टिकल रियलिटी है कि हमारी बात जो लोग सुन रहे हैं ना, ज़्यादा चांस है कि वो लोग, मतलब इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस, ज़्यादा चांस है कि आप फिल्म स्कूल नहीं जाओगे. एक तो सीट्स कम है. ऐसे देखो फिल्म स्कूल बहुत है. मेरे यहाँ 2 किलोमीटर रेडियस में ही 5-6 फिल्म स्कूल हैं अंधेरी वेस्ट में. फिल्म स्कूल के नाम पे अलग स्कैम चल रहा है इस देश में, ठीक है. तो वो एक अलग सीन है. देखो, तो एक तो अच्छे फिल्म स्कूल्स हमारे देश में बहुत कम है, उसके कारण नंबर ऑफ सीट्स कम है. और अगर आप इंटरनेशनली फिल्म स्कूल्स में सेलेक्ट हो भी गए तो उसका जो कॉस्ट आता है वो बहुत एक्सपेंसिव है. ज़्यादा चांस है दैट पीपल हु आर लिसनिंग टू अस कैन नॉट अफोर्ड दैट मच मनी. वो बहुत ज़्यादा करोड़ों में है खर्चा यार. तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल रियलिटी है कि यू शुड फाइंड ऑल्टरनेटिव टू अ फिल्म स्कूल. And with Sati sir, what we should learn is कि self-taught होना is an option everyone has. उसको एक्सप्लोर करो ना. आप वेट होकर के दुखी क्यों हो रहे हो, मुझे चांस नहीं मिल रहा, आप क्या कर रहे हो? So, you know, I remember when we first met Manoj Sat, one of the things you had said was Manoj has an advantage over other people, which is that he had a flair for dialogue writing. Right? Manoj, you come from... Manoj, tell people, where do you come from? What town were you know, brought up in? छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा शहर है कोरबा, वहीं से हूँ मैं. Yeah, so that was one huge advantage, right? Because he knew the language of, you know, what India talks, and he had a flair for dialogue. तो एक सवाल किसी ने पूछा था कि, you know, what will increase my chances of getting into the industry if I write in a certain genre, right? So I think I'm going to modify this saying, कोई skills है which give you an unfair advantage, like flair for dialogue. I think, like for me personally, if you can write comedy, I think it's a big advantage generally, क्योंकि उसके use cases बहुत wide है. आप अवार्ड शो के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो, आप मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो, आप किसी का डायलॉग फिक्स कर सकते हो, आप यूट्यूब वीडियो भी लिख सकते हो. लाइक सो लाइक दैट, व्हाट आर सम ऑफ द अदर कंपैरेटिव एडवांटेज दैट यू गाइज हैव फाउंड ईदर इन योरसेल्व्स और फॉर अदर पीपल? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि इट वोंट वर्क दैट वे. आई थिंक जो आपका एडवांटेज है, जो आपका स्किल सेट है, दैट विल हेल्प यू. बट जो आपकी वीकनेसेस है ना, वो स्क्रीन राइटिंग में बहुत बड़ा डैमेज कर देते हैं. तो अगर आपका डायलॉग राइटिंग बहुत अच्छा है लेकिन बाकी चीज़ें कमज़ोर है ना, तो वो बहुत बड़ा डैमेज है. मतलब ऐसा नहीं कि आप जसप्रीत बुमराह नंबर 11 पे बैटिंग करके आप जस्टिफाइड हैं क्योंकि आप बॉलिंग बहुत बढ़िया कर लेते हैं. राइटिंग में ऐसा है कि आपको यू मस्ट वर्क ऑन ट्राइंग टू बिकम अ वेल राउंडेड स्क्रीन राइटर. एंड एज आरती सेड कि इफ़ यू रियलाइज योर आइडिएशन इज़ वीक, आई रियलाइज माई आइडिएशन इज़ वीक 3 years ago. And I spent 3 months ideating. It was in a professional capacity, but I took that job also because I wanted to improve that one muscle in the writer's brain कि यार मेरा ideation कमज़ोर है. So in those 3 months I came up with an average of 6 ideas every week,
which is close to 75 ideas in 3 months, right? So I think the more important thing is to recognize our limitations as writers and work. I don't think अब ये बात अलग है कि if you are okay with regard to every skill, you are fine, then a particular skill really helps you break the clutter and get noticed. Arti, what are your weaknesses as a writer? Have you recognized them? Ideation, definitely. I'm still working on that because I realize that I tend to gravitate towards ideation in the genre that I am comfortable with, either as a writer or I like as an audience. Like horror, for instance, is not my हॉरर thing. बहुत पसंद है आपको? नो नहीं. इज एज इन आई लव एज एन ऑडियंस बट आई नो मैं लिख नहीं सकती तो मैं कभी भी मेरे अगर जो आइडियाज की शीट है वो 50 आइडियाज में कोई भी हॉरर नहीं होगा एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ पीपल दैट आई लाइक is the kind of characters I tend to create. I don't create characters that I despise generally. So that is also to populate your the worlds of your stories with all kinds of people is something that I know I need to learn. मनोज, आपकी वीकनेसेस क्या हैं? हाँ, तो वही जैसा आरती ने बोला कि कुछ जॉनरास ऐसे हैं जिसके आइडियाज कभी खुद से नहीं आते हैं, जैसे कि उनमें से एक हॉरर भी है, उसमें से एक एक्शन भी है, उसमें से एक स्पेस फिल्म या साइंस फिक्शन वाली फिल्म, ये वाली फिल्म्स भी ऐसी हैं कि ऐसा खुद से नहीं आता है। तो एक ये लिमिटेशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, जैसे मेरे को लगता है कि वही कि सिनॉप्सिस लिखना इज समथिंग जो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मतलब मैं कभी सिनॉप्सिस अच्छा नहीं लिख पाता, कोशिश करता हूँ रीराइट कर करके कि वो मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो और भी इसके अलावा और भी बहुत सारी है, सोचूंगा तो बहुत लिमिटेशंस पता चलेंगी। And what do you think your comparative advantage is, Arti and Manoj? Advantage is my personal taste is very mainstream. So I like stories that are mainstream. I get into that easily, and I also feel I love working with people generally. So I get along with people, and that also helps. Because so much of a writer's life is also soft skills that go beyond what you bring to the table as a writer. Correct. इसका मतलब क्या है? Can you give me some examples? I'm throwing this to everybody. Soft skills की advantage क्या है? Like, I feel that there's so many kinds of jobs that writers can do. Like, for example, if you're in a writer's room, you're pretty much throwing yourself into new territories every room that you walk into. And every room has its own energy. You have to get along with not just the three people you're writing with, you need to get along with the production, you need to get along with your director, and get along. So, you have to be friends, but to be able to take feedback, to be able to not get offended when something is not working, to be able to not let your personal choices come in the way of your professional choices. So I think that's very, very important because at the end of the day, everybody wants to work with people that they are okay to sit down in a room with for 8 hours and not feel like, oh my God, what did I just go through? Sati, is this true? Soft skills? It's getting increasingly more relevant in the present OTT boom. For example, if I'm hiring a writer, apart from the writing skills, I'm looking at other skills as well. For example, I'm looking at their time management. So presently, I'm in the process of hiring a writer for a project. One thing which I've asked them is that I've given them an assignment. That assignment is actually, it's not an assignment. It is, they have to submit a 2-month plan that if they read this, how they can improve this in 2 months. Now, they have to mention the merits and demerits of the material and their own weaknesses and strengths, but also how they plan to spend these 8 to 9 weeks. Got it. Time management is another thing that you look at. Time management. Then also I feel that what Aarti said is right, to be able to take feedback, but I would also like to add the other side of it, which is to be able to be assertive and firm and back your conviction without upsetting anyone, without disrespecting anyone. I think that's very important because it's easy for producers, showrunners and directors to enter a room and say कि यार this is not working, okay? But वो writer ने कुछ सोच के डाला है ना वहाँ पे. To be articulate enough to explain why you have made the choices that you've made, which I think जितना आप लिखते हो, जितनी आपकी काम बन जाती है, उतनी आपको credibility आती है, तो वो लड़ाई थोड़ी कम हो जाती है. But articulate करना बहुत important है. नहीं, यही अभी मनोज अपने स्ट्रेंथ्स बताएं तो कुछ और आएगा दिमाग में, बट ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं इंक्रीजिंगली बहुत इंपॉर्टेंट। वो जो अकेले बैठ के राइटर सर फोड़ता था, वो जमाना बहुत हद तक बदलने लग गया है अभी। सी जब फीडबैक आता है ना,
उस वक्त जो भी स्टूडियो या प्रोड्यूसर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, हम सबको लगता है कि हमको राइटिंग आती है और हम सबको लगता है हम फीडबैक दे सकते हैं, इसलिए हम फीडबैक देते हैं। कोई सेट पे जाके कैमरा मूव करने का रिस्क नहीं लेता और राइटिंग इज वेरी उसमें इजी। सिनेमेटोग्राफर को प्रोड्यूसर आके नहीं बोलता है कि ये कैसे जीबीजी कर अच्छा नहीं कैसे था। कर हाँ, तो राइटर को सब बोलते हैं। यहाँ पे आई थिंक एंड आई कीप टेलिंग माई राइटर्स एंड इवन इट अप्लाइज टू मी ऑल्सो, आई कीप टेलिंग माई प्रोड्यूसर्स ऑल्सो कि यू टेल मी द प्रॉब्लम्स, यू डोंट टेल मी हाउ टू फिक्स इट। आप बताओ रीजनेबली, मार्क देम, टेल देम, लिस्ट देम डाउन, I'll address all the problems and if I can't I'll explain to you so that we are a happy family. देखो ये बात भी सच है कि जो फीडबैक तो आपको बहुत मिलेगा लाइफ में, वो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड हैव टू बी गुड एट रिसीविंग फीडबैक। आई थिंक इट्स अनदर स्किल कि सामने वाला जो फीडबैक दे रहा है, अक्सर लोगों को पता नहीं है कि वो क्या चाहते हैं मटेरियल से। सामने वाले से पिन पॉइंटेड फीडबैक लेना, उनसे ऐसे सवाल पूछना जिससे फीडबैक क्लियर हो जाए, ये भी तो एक स्किल है। अक्सर ये लोग कर नहीं पाते। डायरेक्टली पिन पॉइंट पूछना कि मुझे दिक्कत क्या है वो बताओ स्पष्ट शब्दों में। सो दिस ऑल्सो इज अ स्किल। people who can give good feedback have a lot of value in this industry. मतलब लोग बहुत इज्जत करते हैं अगर आप अच्छे से फीडबैक दे सको तो। और उसमें एक की चीज़ ये भी है कि आपने फीडबैक दे दिया, सामने वाले ने लिया ही नहीं फीडबैक, तो क्या फ़ायदा फिर? तो आपको फीडबैक ऐसे फ्रेज करना पड़ेगा कि सामने वाला ले। तो कैसा फीडबैक मांगना है वो भी, जितनी बेसिकली इट फील्स लाइक जितनी क्लैरिटी हो आपको एज एन इंसान, उतना कंपेरेटिव एडवांटेज होता है। पीपल विल ट्रस्ट यू विद देयर फीडबैक, यू कैन गिव मोर क्लियर फीडबैक। और क्लैरिटी आने के लिए इट टेक्स ईयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड ईयर्स ऑफ आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स। मनोज, योर स्ट्रेंथ्स दैट यू हैव नोटिस्ड? आई थिंक शायद एक स्ट्रेंथ जो मेरे को लगता है मैंने नोटिस किया है कि जैसे राइटिंग के लिए कई बार हमको डेडलाइंस होती है तो हम लिखते हैं, मतलब ऊपर से प्रेशर होता है तो लिखते हैं। मैं ऐसे बैठा रहता हूँ खाली तो लिखता रहता हूँ बेसिकली। तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को बाहर से प्रेशर नहीं चाहिए होता लिखने के लिए। कोई काम नहीं होता कमीशन काम तो खुद का ही लिखता रहता हूँ, क्योंकि यू हैव नो अदर चॉइस, यू नो, यू हैव टू सिट डाउन एंड यू नीड टू राइट योर थिंग। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि मैं अवॉइड नहीं करता या मैं डिले नहीं करता, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता बहुत ज़्यादा। हमने ये डिस्कस कर ली कि यू नो जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो व्हाट कैन यू डू टू सर्वाइव। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जब आपको मौका मिलता है यू नो टू ब्रेक इनटू द इंडस्ट्री, यू नो व्हाट ऑल यू कैन डू। मुझे जानना है कि ये जो हम बोलते हैं स्क्रिप्ट रखो अपने पास बिफोर यू अप्रोच समवन, हाउ डू यू नो अ स्क्रिप्ट इज रेडी टू बी पिच्ड? आई वांट टू थ्रो दिस टू द होल रूम। स्क्रिप्ट तैयार, क्या आपकी स्क्रिप्ट पकी हुई है? इज इट गुड इनफ टू पिच? ये भी तो इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नोइंग, राइट? कैसे पता चलता है, क्या साइंस है? आरती, मनोज? एक चीज मैंने डिस्कवर करी है कि जैसे हम लोग की खुद की स्क्रिप्ट में हमको प्रॉब्लम्स मुश्किल से दिखती है, क्योंकि हमने डेवलप करी है तो हमारे बच्चे जैसी होती है, तो बहुत टाइम हमने उस पर स्पेंड किया रहता है। तो एक हमारा अपना बायस अपनी कहानी के लिए रहता ही है। एक डायलॉग जो मेरे को लग रहा है बहुत अमेजिंग है, अगर मैं किसी और पिक्चर में सेम डायलॉग सुना होता तो मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, ऑर्डिनरी सा तो है, पर क्योंकि मेरे अंदर से आया तो मेरे को लगेगा कि वो अच्छा है। और ये शायद हम सबके साथ ही होता है कि हमको अपने प्रोजेक्ट्स में मुश्किल से कमियां दिखती हैं। तो ये ओवर द टाइम मैंने डिस्कवर किया कि ये एक प्रॉब्लम है कि बेसिकली आप फीडबैक लीजिए। तो और फीडबैक भी वो जैसा सैडी सर ने कहा कि उसको लेने भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसा फीडबैक दे देते हैं जो बहुत बिजार होता है, मतलब बहुत बिजार। तो वो भी है कि आप कई लोगों से फीडबैक लीजिए, अलग अलग टाइप के लोगों से फीडबैक लीजिए। एक जो आपके जैसा राइटर हो, एक जो आपका एक अच्छा फ्रेंड हो जिसको सिनेमा की अच्छी समझ है, एक जो बिल्कुल ऑडियंस टाइप बंदा हो। ऐसे मेरे ग्रुप्स टाइप बने हुए हैं फ्रेंड्स के, जिनसे मैं फीडबैक लेता हूँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि कौन सी प्रॉब्लम है जो कॉमन है, जो सबको आ रही है। अगर 3 लोगों को भी वो प्रॉब्लम आ रहा है तो भी 100% वो प्रॉब्लम है। फिर आप, मेरे को लगता है आप कितना भी कन्विंस्ड हो, अनलेस आपका विजन बहुत जबरदस्त है, यू नो, आप कुछ डेविड लिंच जैसा करना चाह रहे हो जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो वो अलग बात है। हो सकता है कि वो उतना अमेजिंग हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट 99% केसेस में नहीं होता है। 99 केसेस में वो प्रॉब्लम है, तभी 3 और मोर लोगों ने उसको बताया है। तो प्लीज बैठो, फिर भले ही आपको उस पर काम करने के लिए बहुत कुछ चेंज करना पड़े, लेकिन करो वो। आई बिलीव ऐसा। आरती, कोई क्वांटिटेटिव नंबर होता है क्या कि 1 साल तो बैठे ही रहो स्क्रिप्ट पे? नहीं, नॉट फॉर मी। यूजुअली क्या होता है, बाय द टाइम द ड्राफ्ट दैट आई गिव आउट फॉर फीडबैक, मैंने उस पे दो तीन रीराइट तो कर लिए होते हैं। दैट इज द फर्स्ट ड्राफ्ट एज फार एज फीडबैक इज कंसर्न। एंड एक रीजनेबिलिटी का बॉल पार्क होता है दिमाग में, लाइक यू गिव इट आउट टू 5 पीपल, लाइक मनोज सेड, यू स्पॉट अ पैटर्न, और उसके बाद 2 रीराइट 3 रीराइट कर कर इफ आई नो के ये ठीक है, पेज नंबर्स ठीक ठाक रेंज में है,
It largely says what I need to say. And I have addressed most concerns that I had, most concerns that came up in feedback, some things that I decided not to like overrule, which it came in feedback, but no, I want to retain it, so it's going to stay. And then I feel अगर it's going to go out to some director, then I feel कि अब इस stage पर है जहाँ पर I have said what I want to say, but it is also open to feedback from a prospective director. And then it makes sense कि अब फिर collaborate करके, और इस stage के बाद you need the person who's going to make it and then come on. So time का ये नहीं रखती हूँ मैं, लेकिन reasonability का एक रहता है कि अभी 2-4 इतना खुद पे होता है कि ठीक है 3-4 रीराइट में हो जाएगा, इससे I don't need 10 rewrites. सैटी, आपने बहुत लिखा है और बहुत लोग को फीडबैक दिया है, मेरे को थोड़ा और डिफाइंड जवाब चाहिए कि आपके हिसाब से आपने क्या पैटर्न देखा है कि कितने रीराइट के बाद यूजुअली स्क्रिप्ट थोड़ी पकी होती है. मेरे को थोड़ा और डिफाइंड आंसर. नहीं, ऐसे बड़ा मुश्किल है. मैं रिसेंटली आई रेड अ रियली गुड स्क्रिप्ट एंड इट वाज जस्ट द सेकंड ड्राफ्ट एंड आई थॉट इट वाज रेडी टू शूट. सो आई थिंक एक तो लोग ना ड्राफ्ट को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कि मेरा ये चौथा ड्राफ्ट है, पता चला कि थर्ड और फोर्थ ड्राफ्ट में सिर्फ कैरेक्टर का नाम बदला गया है. तो ये मेरा अच्छा, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि स्टोरी लेवल पे पिच नहीं करना चाहिए. आप अगर फिल्म पिच कर रहे हो, मैं शोज की बात नहीं कर रहा, अगर आप फिल्म पिच कर रहे हो तो स्टोरी लेवल पे पिच नहीं करना चाहिए. स्क्रीन प्ले तक तो जरूर पहुंचना चाहिए, बिकॉज आपको खुद भी पता चलेगा स्क्रीन प्ले लिखने के बाद ही कि यहाँ फिल्म है या नहीं है. अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं और आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं तो भी 4-5 महीने तो लग जाते हैं. मतलब इससे कम में हो जाए तो आप अनुराग कश्यप हो. हाँ, तो वो एक्सेप्शन है, वो नॉर्म नहीं है. फिर अनुराग तो हफ्ते हफ्ते में लिख देता है. अनुराग इज अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर. एक चेकलिस्ट होना चाहिए कि आप जो बनाने निकले थे, दैट वन लाइन, इज इट अचीविंग दैट, आर योर कैरेक्टर्स लाइकेबल, इज देयर इनफ कॉन्फ्लिक्ट. जो ये तो एकेडमिक चीज़ें हुई. इनके अलावा आर द डायलॉग्स कंसिस्टेंट, अ वेरी बेसिक पॉइंट. इज इट रीडिंग वेल. यू शुड रीड योर ड्राफ्ट सो मेनी टाइम्स कि जब आप पढ़ते हो आपको खुद ही पता चलेगा. I would say even a step before that, if you have friends or other writer folks who you can feedback it before you go to someone who can actually make the project happen, वो भी करना हाँ, जरूरी है. तो उसमें मेरा एक सर्टेन प्रोसेस है विच आई थिंक इज क्वाइट, मतलब कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली मनोज आरती भी शायद वही करते होंगे कि आप अगर अपनी स्टोरी को बहुत ब्रॉडली जानते हो, बहुत अच्छे से नहीं जानते, ब्रॉडली जानते हो, ये आप अपनी मम्मी को सुना दोगे ना तो नहीं मिलेगा सही फीडबैक. ये आप उसको सुनाओ जिसको स्कोप नजर आता है, प्रॉमिस नजर आता है, जिसको वो समझ में आता है कि वेयर यू कैन टेक दिस. लेकिन जब आप अपनी स्टोरी को इतना फ्लैश आउट कर चुके हो कि वो पेपर पे 8 to 10 पेजेस हो गया है, या आपके माइंड में वो एक हाफ एन आवर का नरेशन है, 45 मिनट्स का नरेशन है, तब आप अपनी मम्मी को भी बिठा के सुना सकते हो, है ना. तो मुझे लगता है कि वो एक पूरा एक स्पेक्ट्रम हो सकता है कि आप स्क्रीन प्ले लिखने के पहले स्टोरी लेवल पर ही आप अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को आप इनवाइट करो. जैसे मनोज बोल रहा था कि कोई फिल्म बफ फ्रेंड है, उसको शायद आप थोड़ा 2-3-4 पेजर भी बन गया तो शायद आप दे सकते हो, क्योंकि वो फिल्म बफ है, उसको स्कोप दिख सकता है कि एंड में ये कैसे हो सकता है. हाँ. पर अब मम्मी को सुनाओगे, मम्मी को कहाँ समझ में नहीं आएगा? समझ में आएगा. लेकिन अगर आप किसी स्क्रीन राइटिंग टीचर को एक हाफ अ पेज भी दोगे ना, तो वो ना सिर्फ समझेगा, वो उसमें आपको बताएगा कि हाँ क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसमें क्या मेरिट्स हो सकता है, तुम और क्या क्या कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज वो डेली लेवल पर ये कर रहा है. सो वो है. आई फील दैट हम लोग यहाँ पे बात करें कि राइटर को पिच कब करना चाहिए. इंपॉर्टेंट बात ये भी डायरेक्टर को कब पिच करना चाहिए. इफ यू हैव रिटन द स्क्रिप्ट एंड यू वांट टू डायरेक्ट इट, तब कब पिच करना चाहिए. मुझे लगता है कि एज अ डायरेक्टर यू शुड स्टार्ट पिचिंग योर स्क्रिप्ट व्हेन इट इज ऑलमोस्ट रेडी टू शूट. वरना प्रॉब्लम ये नहीं कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, प्रॉब्लम ये है कि आप एक्सेप्ट हो जाओगे. असली प्रॉब्लम वो है, आप एक्सेप्ट हो जाओगे और ये इंडस्ट्री बोलेगी कि यार वो स्टार खाली, उसका डेट मिल रहा है, 3 महीने में कर देते हैं. और एक बार आप उस साइकिल में फंस गए ना, उसके बाद उससे निकलना वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है. सो आई फील इट शुड रीच अ स्टेज वेयर यू फील दैट येस इट इज रेडी टू शूट. अभी इसमें और इंप्रूवमेंट होगा, बट इट इज रेडी टू शूट. आई डोंट माइंड गोइंग ऑन फ्लोर्स टुमारो, बट दिस इज अ वेरी पर्सनल ओपिनियन. अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स वुड से कि नहीं यार, मैं 8वां ड्राफ्ट तक लिखने जाऊंगा तब तक मेरी जिंदगी निकल जाएगी, तो मैं उसके पहले आई वांट टू टेस्ट द मार्केट, आई वांट टू सी कि कोई इंटरेस्टेड है या नहीं. आई पर्सनली डोंट बिलीव इन दैट एट ऑल. आई बिलीव कि आप दुनिया की सबसे अतरंगी स्टोरी लेकर आओ जिसके लिए यू थिंक देयर इज नो मार्केट, राइट अ गुड स्क्रिप्ट आउट ऑफ इट विच इज रेडी टू शूट,
start pitching it, and only then you can create something which is, for example, Queen या चक दे इंडिया या रंग दे बसंती या लगान या सत्या, ऐसी फिल्में नॉर्म नहीं थी, इन्होंने नॉर्म को ब्रेक किया था. उस लेवल पर अगर काम करना है ना, तो आप कच्चा स्क्रिप्ट लेकर जाओगे, लोग रिजेक्ट कर देंगे. ये क्या है, ये क्रिकेट खेल रहे हैं गांव वाले, ये क्या है, वो आपको रिजेक्ट ही करते रहेंगे. लेकिन व्हेन यू आर ऑलमोस्ट रेडी, तब जाकर लोग इंटरेस्ट लेंगे. As a director, you can't come across as someone who's losing money. A production house is losing money because your choices are not final. You can't say नहीं, ये सीक्वेंस में हटा दूंगा, ये ब्रिज पे शूट करना है रेलवे के साथ, ये हटा दूंगा. The entire budget goes for a toss. So you have no responsibilities. Satya, I think an important part of having a career in the movie industry, right, is having a sounding board who can help you creatively and perhaps also finding co-writers, right? Like I know that First Draft and being surrounded by writers who, you know, had a certain level of thinking helped you. But how does someone from the outside find, you know, sounding boards or someone to collaborate with? When you said कि फिल्म फेस्टिवल्स और राइटिंग वर्कशॉप्स और हाँ वहाँ मिल जाते हैं अपने टेस्ट के लोग. और मुझे जहाँ तक लगता है आरती से भी मैं पहली बार मामी में ही मिला था. मतलब तो आई थिंक वही है. और अगेन आई थिंक दैट एज फार एज को राइटर्स इज कंसर्न, इट्स अगेन अ वेरी पर्सनल चॉइस. आई पर्सनली ऑलवेज एंजॉय वर्किंग अलोन. देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनके साथ मुझे को राइट करने में मज़ा आता है. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको को राइटर चाहिए ही चाहिए. मनोज भी बहुत ज़्यादा सोलो राइटिंग करता है. आरती ने भी काफ़ी हद तक किया है. लेटली आरती हैज़ बिन कोलैबोरेटिंग अ लॉट विद मेनी पीपल. को राइटर ढूंढने में ना मुझे लगता है कि दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. एक है कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं जो दूसरा को राइटर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है. बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बीच में म्यूचुअल रेस्पेक्ट कितना है. एक पैशनेट काम है, एक कमरे में बैठ के आप सर फोड़ने वाले हो, पता चला एक दूसरे का सर फोड़ दिया, वो नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स गेट डाउन टू नंबर्स, राइट? मुझे बताओ, अगर आप इंडस्ट्री में शुरू कर रहे हो, आपकी पहली फिल्म बन रही है या आपकी पहली, you have a writing gig for a show or a movie, how much should you expect to make? How much money would you make if you were a first time writer, and how much can you make if you make a career in this? ₹0 on the first project. जीरो क्या, माइनस भी होता है, क्योंकि आपको फी तो मिल नहीं रही है और कन्वेंस आपको पॉकेट से निकालना है. अच्छा, क्योंकि अक्सर आपको लिखने को बोलते कुछ जो प्रोजेक्ट कभी बनती नहीं है, तो आपको भी पैसे नहीं मिलते, आपका टाइम भी बर्बाद हुआ, पैसे भी बर्बाद हो गए. दिस इज नॉट फेयर, बट दिस इज अ रियलिटी दैट शुरू में पैसे नहीं मिलते हैं ज़्यादा. या तो बहुत नेग्लिजिबल मिलते हैं या बिल्कुल नहीं मिलते हैं. आई रियली फील दैट विद चिंटू, देवांशु एंड आई, वी वर ऑलवेज रेडी कि चिंटू का बर्थडे जब भी बनेगी, प्रोड्यूसर अगर फिल्म पे पैसा लगा रहा है और हमारे जेब में एक भी रुपया नहीं आ रहा है, हमने फिल्म लिखी, डायरेक्ट की, लेकिन एक भी रुपया जेब में नहीं आया, तो इट्स ओके. बट अगर इफ़ वी आर वर्किंग फॉर हायर, अगर किसी और ने हायर किया कि आकर मेरे लिए लिखो, ये कहानी है, इसको डेवलप करो, तब तो पैसा मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी. बट नंबर्स का क्या है यार, मुझे तो लगता है कि मतलब मेरे स्टूडेंट्स मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं आज के डेट में. नहीं, ये थेरेपी सेशन नहीं है. मुझे बताओ, पैसे कितने मिलते हैं? What is a fair amount to get for your first movie? So it depends on a few factors, and without that it's very difficult to answer. One is the budget of the film. अगर आप एक 2 करोड़ की इंडिपेंडेंट फिल्म लिख रहे हो, तो आपको शायद 3-4 लाख रुपए, 5 लाख से ज़्यादा शायद ना मिले. आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज़ फेयर तो भाई कुछ और. एंड इफ़ यू आर राइटिंग 10-15 करोड़ फिल्म, तो आपको शायद 15-20 लाख रुपए भी मिल सकते हैं. तो फिल्म के बजट पे डिपेंड करता है. But Sati sir, you want to talk about that screenwriters contract, the Screenwriters Association ने जो एक contract बनाया minimum pay का? मिनिमम का मुझे जहाँ तक लास्ट फिगर पता है, वो है 15 lakhs irrespective of the budget of the film. So 5 लाख स्टोरी के लिए, 5 लाख स्क्रीन प्ले के लिए, 5 लाख डायलॉग के लिए, irrespective of the budget and seniority of the writer. And this was a few years ago. कुछ ऐसा शायद 2.5% भी था कि जैसे 10 करोड़ की फिल्म है तो उसका 2.5% हो गया शायद 25 लाख रुपए. This is basically what the Screenwriters Association is proposing. I don't think it has been accepted yet by the producers. Yeah. We as a writer or producer? As an executive member of Screenwriters Association. Now that you both have been a part of, a process where something gets commissioned and then gets made, what were your expectations from the industry and how is it different?
राइट? नाउ यू आर पार्ट ऑफ इट. तो क्या सोच के आए थे और क्या अलग निकला है उससे? ये थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है, आई वांट टू थ्रो इट टू एवरीवन. देवा, स्टार्टिंग विथ यू. देवा, मुंगेर से आए थे आप बम्बई, आंखों में सपने लिए. मेरे सारे सपने पूरे हुए. मैं जब आया था, मैं सिर्फ चिंटू का बर्थडे बनाने आया था. एंड मैं फिल्म्स बनाने आया था, फिल्म मेकर बनने आया था. टुडे आई हैव मेड 2 फिल्म्स एंड आई मेक लॉट ऑफ एड फिल्म्स. एंड हाँ, तो सपने पूरे हो गए. नाउ आई हैव टू लर्न एंड हैव फन एंड टेक केयर ऑफ माय फैमिली. क्या लगा था मनोज, और क्या क्या असलियत है? कुछ बताओ हमें. असलियत तो ऑब्वियसली ऐसा है कि दिखता सब ऊपर से बहुत आसान आसान है, अंदर से चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं कई बार, क्योंकि जो प्रोसेस है पूरा वो कई बार आपको निचोड़ के रख देता है. बहुत सारे कंस्ट्रेन आते हैं जब आप सोचते हैं कि मैं राइटर बनूंगा, से जब तक आप राइटर बन जाते हैं तो भी. तो बस मेरे को लगता है चेंज तो इतना ही होता है कि मेंटली आप प्रिपेयर रहते हैं उन सारे चैलेंजेस के लिए, अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर के जो भी कुछ आने वाला है. तो एक यही चेंज है, और तो शायद कुछ है नहीं, क्योंकि राइटिंग मेरे को लगता नहीं है ऐसा कुछ है जो टाइम के साथ वैसे भी इजी होने वाला है. वो उतना ही डिफिकल्ट होता है, हमेशा आपको स्टार्ट करना है जीरो से. तो हाँ, बस मेंटली ज़्यादा मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको लेकर के. पहले लगता था when as an audience when you see something that's not great and you feel कि ये लिख कैसे लिया, ये तो कितनी obvious problem थी, ये दिखा कैसे नहीं. And then when you get to write it, you realize कि हर story में बहुत stakeholders होते हैं. You feel that the writer is all powerful, which is ideal and great, but there are a lot of people giving feedback, and there are a lot of things that you have to do which you may not want to do, but writer written by में आपका ही नाम है. And then when that comes on screen, you know कि shit, I did not want to do that, but as the audience in you is like, oh my god, how did that ever get written? So that is there. So you feel you have a complete power, but to understand and accept, one, that you don't have complete power, and two, that आप जो लिख रहे हो, your job ends at submitting it, and you have to surrender the process to the process that it will be reinterpreted many times over by the director, by the editor, and by a lot of people. So that acceptance takes some time. Awesome. Feels Like Ishq, now released on Netflix. 14 Fere, Devanshu Singh, Manoj Karwani, now out on Z5. Satyajit sir, new workshop coming up very, very soon. Do attend. And there's a book, guys, like we mentioned in the beginning of the episode. If you are a writer and you want to learn how to write a script, you can follow the journeys that Aarti, Manoj, Deva, Sati have taken by checking out this book. The link is in the description. Sati, you want to say something about the book before we part ways? Yeah, I think Tanmay, both you and I felt that when we invited entries for First Out, we had 17,000 registrations and only 10 seats, making it the toughest examination in India, even tougher than UPSC. So we had to, we rejected thousands and thousands of people. So both you and I felt that कुछ करना चाहिए. And we realized that English language में बहुत material है online. You have books written by some really wonderful screenwriting teachers. हमने तो सब वही अंग्रेजी किताबें पढ़ के सीखा है. तो हिंदी जानने वालों के लिए, जो लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आपकी हिंदी अगर बढ़िया है तो आप बहुत अच्छे स्क्रीन राइटर बन सकते हैं, मगर वो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है स्क्रीन राइटिंग सीखने के लिए. तो इसलिए थैंक्स टू तन्मय हु फंडेड द राइटिंग प्रोसेस ऑफ द बुक, and thanks to Rajkamal Prakashan, who are the leading Hindi publishing house in India. We met Ramkumar Singh, who is a film writer and journalist, and he and we co-authored this little 160-pager book called Idea Se Parde Tak, and we have priced it at only 199 rupees because we really wanted to reach to small towns and villages in India, people who can read Hindi. And to be honest, Tanmay, मैं अभी writing workshops बंद कर रहा हूँ for several months. I think I am done with my final writing workshop of the year, and I'm going to spend my time developing new lectures which no one has ever attended. Even Aarti and Manoj have not attended those lectures. तो मैं वो lectures develop करने में लगभग 1 साल लगाऊंगा, और इसीलिए ये जो मेरा 1 साल का teaching से sabbatical है, उसमें this book will reach to people, and hopefully they'll benefit from the book. बढ़िया. और इस बुक के सिवाय और कोई बुक would you like to recommend for someone who wants to get started?
Yeah, I mean, if you can read English, then apart from Sid Field's screenplay, which is a ये बुक मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, मेरे लाइट फिक्स है यहाँ पर, बट अपार्ट फ्रॉम सिड फील्ड स्क्रीन प्ले विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर बुक ऑन स्क्रीन राइटिंग, देयर इज द टूल्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग बाय हार्वर्ड एंड मैबली. वो हमने फर्स्ट ड्राफ्ट में भी वो कोर्स में उस बुक को रखा था, द टूल्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग. दीज टू बुक्स आर वेरी बेसिक फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट, बट आई रियली बिलीव दैट अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो जितना काम आपको करना है उसमें किताब पढ़ना 5वें या 6ठे नंबर पे आता है. किताब पढ़ना से बहुत ऊपर आता है स्क्रीन प्ले पढ़ना. दुनिया भर की फिल्मों का स्क्रीन प्ले पढ़िए, वो सबसे मतलब आई थिंक सेकंड या थर्ड नंबर पे ज़रूर आता है. और उसके अलावा आप बस बैठ कर लिखिए. मतलब जब मैंने और देवांशु ने लिखना शुरू किया था तो हमने कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया था, हमें 3 एक्ट स्ट्रक्चर भी नहीं पता था, और हमने चिंटू का बर्थडे लिख दी थी. तो आई थिंक दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. किताबें ज़्यादा ना पढ़ें और उससे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग. तो राइटिंग पे फोकस करें और अपने आप को समझें, अपने स्ट्रेंथ्स पर को रिफाइन करें. On that note, guys, hope this episode was useful to everybody listening. You can follow everybody on Instagram, tweet to them. All the links are in the description. Thank you, Aarti, Manoj, Satyanshu, and Devanshu for joining us. And we will see you on the next episode. Before you guys head out, I want to make a quick announcement. It's very important. Just hear me out. In case the Bollywood dream is not for you and you're still looking for a job, I have something special for you. My friend Akshay and I have created something called the Super Job Board. It's mine and Akshay's personal mission to place 1,000 people from our communities in really cool jobs. The jobs on the Super Job Board are highly curated. They're from companies that either I hold in really high regard or companies that I've worked with or I've invested in. A bunch of new jobs keep showing up on the job board, so if you go there, make sure you bookmark it. Currently, there are some new awesome roles that have opened up. There's software roles at Blockade Games, design roles at FamPay and Tickettape, product roles at Small Case, and many more. Check it out with the link in the description. This link is going to be there in all the videos now on. So if you ever show up, just give the job board a look. Maybe there's something out there for you. And if you stuck around all the way till here, make sure you give us a follow on Spotify. Help us climb up the rankings a little bit. And check out everyone you heard on Instagram. Link is in the description. On that note, thank you very much for watching.